Hello everyone, good evening. Good evening, my friends and dear parents. A warm welcome to another episode of Web Talk Show. So let's welcome let's welcome our guest. She's Gayatri Srinivasan. So let me tell you about myself. I'm the host Purva Kakre, the founder and director of Teachers and Training Networking Community. I want to tell you more about myself that I am a socialite, a skill educator, a entrepreneur, and event organizer. I run these two communities, teachers community and entrepreneurs community. The aim to create this entrepreneur community is to connect with Indian women all over India, and we want to empower them for their work. So I would like to tell you about what is our Web Talk Show. Web Talk Show is a platform where you get a chance to be known, recognized, and adored by your viewers. It is a show where we bring guest speakers from all walks of life with their experiences, inspiring stories, business promotions, their social activities, their professional advices, and many more. So, if you wish to be on this platform to talk about yourself, about your profession, brand, inspiring stories, or any other social activities where you want to share about knowledge, any knowledge you want to share, then do connect with us. We are here to connect with you, with your viewers. So, let's begin our show. So, our today's let's welcome our guest. She's Gayatri Srinivasan. She is a financial crisis coach, a chartered accountant, a traveler, a teacher. She has mentored more than. I'll just connect with Gayatri ma'am. Yeah. Good evening, Gayatri ma'am. How Good are evening, you? Purva. I'm fine, absolutely fine. How about you? I'm good, ma'am. So I'm just introducing you to our viewers. So Gayatri Thank you so much. Srivasan is a financial crisis coach, a chartered accountant, a avid traveler, and a teacher. She has mentored more than 2,500 students in college. Her favorite time pass is to read our Vedic scriptures and try to apply them in day-to-day life. So, ma'am, shall we start our show? Absolutely, absolutely, all So, ma'am, yours. I want to ask you what is this Vedic scriptures and how you like why you are attracted Uh, to all of them. because, see, I have from childhood, we've heard a lot of people giving these, what they call stories, which they come out from the Vedic scriptures. This it's very attractive. Like somebody is telling the story about in Ramayana about how that Kaikai sent Ram to exile. So how did Ram try to cope up with him? He just took that exile in such a positive way. So there are a lot of stories which comes to us, and there is a lot of morals which comes out of those stories. So it always attracts me that if suppose I need to communicate something to somebody, so I can tell them in a proper form of a story, and then probably give that moral ki what exactly comes out of that story. So that remains in the Exactly. person's head. Since my childhood, my grandmother also told me a lot of stories. So that's still there in my head. And I also apply it as and when I get into those kind of situations. So Right, ma'am. those they are very attractive. Thank you. Exactly. So, ma'am, today's topic is so importance of reading books, like story reading. So, why story reading is so important for us, like for adults, for kids, for children? Hmm. Now, to be honest, let me just give you an example for this. I would just, at the end of it, the moral of the story will be that the stories are important. Okay, there was one disciple of a monk. He was hunting around to find out, okay, how do I get my enlightenment? See, he was not getting the answers from any of the monks. So he went to this one monk which was there in the Himalayas, and he said, नहीं इनसे तो मैं पूछ के ही रहूंगा अब मेरे को जानना ही है कि enlightenment मिलता कैसे है
ही वॉज वेटिंग, अपना टर्न के लिए वेट कर रहा था, तो हर कोई उनके पास आ रहा था, सिमिलर क्वेश्चंस पूछ रहे थे सब लोग, तो उनको एक स्टोरी बता के वो बोल रहे थे कि ठीक है अभी आप जाओ, नाउ आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो उन लोगों को वो देख रहा था कि भाई ये सबके साथ यही चीज कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा था। वो पूछे, फिर वो मॉन्क को पूछते हैं कि सर वो लोग आपको पूछ रहे हैं कि एनलाइटनमेंट जाने को बोल रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने तो आंसर किया ही नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर आपने दिया ही नहीं। तो वो मॉन्क जस्ट गिव अ स्मॉल स्माइल टू हिम एंड वो बोला कि आप इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, थोड़ा मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो ही वेंट इनसाइड, ही सेड जाके अंदर मेरे किचन में पानी है, आप जरा जाके लेके आओ। सो ही वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट दैट वाटर फॉर हिम टू ड्रिंक। सो देन द मॉन्क आस्क्ड हिम, मैंने तो आपको पानी मांगा था, व्हाई डिड यू ब्रिंग इट इन द बाउल? तो दिस पर्सन जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड, मतलब फिर पानी में कैसे लेके आऊं, आई हैव टू पुट इट इन द बाउल। तो Exactly. दैट्स प्रिसाइसली द रीजन, अगर आपको किसी चीज से किसी को ट्रेन करना है, तो आई हैव टू क्रिएट दैट बाउल ऑफ अ स्टोरी सो दैट दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स एंड लर्न्स अबाउट इट। So वो बाउल is as equally important as that water inside that bowl. So then this person understood that anything which I need to communicate and I need to tell somebody in the proper way and wo effective way, story is the best way to do it. So So that's the exactly the same. importance. So Hmm. इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हम बच्चों को जब स्टोरी बताते हैं, so हाँ. why we have to tell them in a something like a creative way. एक Yes. एक सिंपल स्टोरी नहीं, उसे एक फॉर्मेट करके कि उनके सामने वो क्रिएट हो जाती है स्टोरी एंड दे कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, राइट? Yes, yes, yes. So what is the simple way of telling a story? Like this I told you about. So how you will Yeah. create a है ना, simple इफ way of सपोज telling लाइक a फॉर story? एग्जांपल, अगर सपोज मुझे मेरे बच्चे को कोई पेशेंस के बारे में मुझे बताना है, या फिर मुझे उनको ये बताना है कि लाइफ में सारी चीजें पेशेंटली कैसे करना होता है, कि भाई को अभी सपोज लाइक मैं क्रिकेट में खेल रहा हूँ तो मुझे हमेशा ही 100 मिले, ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी आई विल गो आउट एज अ डक ऑल्सो, या फिर मैं 50 करूंगा और मैं सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस करूंगा नहीं, तो मुझ में पेशेंस कैसे लाना चाहिए। तो व्हाट आई डिड वाज, हम लोग एक मतलब ऑब्वियसली स्क्रिप्चर से मैं कैरेक्टर्स उठाती हूँ, यू शुड हैव अ कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर को आपने थोड़ा सा ड्रामेटाइज करना है, बताना है कि भाई वो किस स्ट्रगल से गुजर रहा है, मतलब उसके लाइफ में क्या उसको तकलीफ हो रही है, और उस तकलीफ का उसने कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट किया। और वो सोल्यूशन आपको कोई प्रोबेबली उस स्टोरी में आपको कोई मेंटोर हो सकता है, या फिर आपने खुद को वो एक्सपीरियंस करके आपने वो सोल्यूशन फाइंड आउट किया। तो आपने ऐसे लाइफ के स्ट्रगल्स के ऊपर अगर आप स्टोरी बनाएंगे, तो बच्चे एकदम शांत से बैठ के सुनेंगे और वो पूरी तरह से उसमें इनग्रॉस हो जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली जो आपको उनको सिखाना है वो आप उस स्टोरी से सिखा सकते हो। तो ऐसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में मेरा बेटा है, एंड माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू, लाइक माय मदर यूज्ड टू टेल देम दैट स्टोरी। तो कभी भी कोई एक नॉर्मल सा, लाइक हम लोग बस ट्रैवल में गए थे, बस में एक आंटी थी, उन्होंने मुझे ये चीज बोला, तो इस तरीके से जैसे हम लोग वो रिलेटेबल कर देते हैं, तो फिर वो बच्चों के दिमाग में रह जाता है। सो दैट्स अ Correct. सिंपल वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी। So giving a small example and telling it will be more creative thing. Yes, it will be more creative, and that will remain in their heads, and those examples rather should be from our life itself, so it is more authentic also। हम लोग उसको मतलब बच्चा उसको बोलेगा हाँ ये सच्ची बोल रही है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हम पिक्चर की कहानी बोल दें, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि वो बोला अरे ऐसा थोड़ी होता है, कोई ड्रामा बोल रहे हो आप। तो अपने लाइफ से जोड़ के बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, बशर्ते हम वही स्टोरी बोल रहे हैं, लेकिन अपने लाइफ में हुआ है ऐसा बताना चाहिए, तो देन दे विल बी एबल टू कनेक्ट टू इट, अच्छा रहेगा। Right, right. So, so what is the impact of the story? What is the impact for that? अभी हर एक पेरेंट को ना ये आपके माइंड में आपने प्री सपोज करना है कि आप बच्चे को क्या बताना चाहते हो, व्हाट इज दैट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। मतलब पहले आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो जाएगी, तो एक बार आप वो ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा, तो ऑब्वियसली वो परफेक्टली कम्युनिकेट होगा अपने बच्चे को स्टोरी के थ्रू। बिकॉज स्टोरीज अगर सपोज आप बोलते हो ना, वो बिकता है, मतलब स्टोरीज सेल, फैक्ट्स आर जस्ट स्टोरी, मतलब फैक्ट जस्ट हम बोल सकते हैं कि भाई बच्चा तेरे को पेशेंस रखना है, दिस इज जस्ट अ फैक्ट, बट इसमें इंसान एक्सेप्टेंस नहीं आता। बट अगर उसको कहानी के तौर पे बोलो
तो वो बच्चा उसका मतलब समझेगा और उसे वो एनैक्ट भी करेगा. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एज टू तुमको क्या वो बच्चे को कम्युनिकेट करना है, या तुम्हारे किसी को मेंटर कर रहे हो तो उसको क्या कम्युनिकेट करना है. तो वो आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है, फिर आप अपने क्या बोलते हैं कहानी को उसके इर्द गिर्द बुन लो और फिर उनको वो बताओ. उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा होता है कि आज तक जो मेरे ग्रैंडमदर ने बचपन में मुझे स्टोरी बोला है, आज भी मुझे वो याद है, मुझे वो स्टोरी याद है, मुझे उसका मॉरल याद है, सब कुछ याद है. तो कभी भी मेरे लाइफ में उस तरीके का सिचुएशन आता है तो दैट ऑटोमेटिकली माय माइंड गोज, इट रिमेन्स इन माय लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो स्टोरी का Okay. इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली. So, some a good incident would you like to share with our in while mentoring the kids, like mentoring the students? Any हाँ, यस. incident would you like to share which is a memorable for you? Now my mother, matlab when she was a child or something like that, at that point in time उनको कुछ मतलब शादी वादी के टाइम पे कुछ दिक्कतें आई. हाउ शी मैनेज, मतलब मेरी ग्रैंडमदर बोल रही थी हाउ शी मैनेज दैट, कि वो शादी के टाइम पे उनकी दिक्कतें कैसे मैनेज की और कैसे पेशेंटली उन्होंने उस चीज को हैंडल किया. Handle किया. वो उन्होंने एग्जाम्पल दी थी. तो आज भी वो अगर कोई भी बंदा अगर आता है बोलता है अरे नहीं मेरी शादी नहीं हो रही, देन आई नरेट दैट स्टोरी टू दैट पर्सन. तो वो स्टोरी नरेशन बहुत ज्यादा हमारे लिए, मेरे को अभी वो दिमाग में है कि हाँ कैसे लाइफ के स्ट्रगल्स को हैंडल करना है. आई हैव क्रिएटेड वन स्टोरी वेयर आई हैव स्पोकन अबाउट एक किंग है जरासंध. काफी टाइम के बाद मैंने वो पढ़ा था. तो उसको मारने के लिए भीम ने बहुत स्ट्रगल किया. उनको उनको 28 डेज लगा कि टू अंडरस्टैंड कि कैसे उनको मारना है. तो In कृष्ण उनके Mahabharat, साथ ही थे. Jarasanti. Right. महाभारत में है. हाँ, कृष्ण उनके साथ ही थे. लेकिन कृष्ण ने उनको डे वन पे वो आइडिया नहीं दिया कि कैसे उनको मारना है. उन्होंने 28 डेज उस स्ट्रगल को झेला. भीम फाइट कर रहे थे, खुद जीते नहीं ना वो जीता. मतलब इट वॉज गेटिंग क्या बोलते हैं Both न्यूट्रल were पे winning. पहुंच जा रहे थे. हाँ, बोथ वे में कोई जीता या हारा नहीं था. तो ये exactly. भीम को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इनको मारने के लिए भेजा जरूर है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. तो वो बहुत डिमोरलाइज हो रहे थे. तो उन्होंने सोचा कि अरे मैं कृष्ण को कैसे पूछूं, मेरे पास मैं इतना ताकतवर हूं, मैं कैसे पूछूं उनको. तो वो लगे जा रहे थे लगे जा रहे थे. तो 28 दिन हो गए. 28 दिन के बाद उनका पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया. वो बोले कि कृष्ण जी आपने मेरे को बोला है इनको मारने के लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इनको कैसे मारूं. तो उन्होंने वो एक ट्विग उठाया और लकड़ी उठाई और कहा कि भाई इसको दो टुकड़े में बोलो और ऐसे फेंक दो तो ये जुड़ेगा नहीं, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू किल हिम. तो ये बोला कि ठीक है वेरी नाइस मैं कर देता हूँ. तो 29th डे पे उन्होंने वो कर दिया एंड जरासंध का वध हो गया. तो ये मैं स्टोरी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब जरासंध जैसे राक्षस को मारने के लिए कृष्ण को पहले दिन से पता था कि इनको हम ऐसे मारना है, पर उन्होंने भीम को वो 28 दिन स्ट्रगल करने दिया. तो बेसिकली व्हेन वी नो दैट कि ऊपर वाला है अपने साथ, लेकिन हमें अपने स्ट्रगल्स खुद हमको खुद अपने करना. सॉल्यूशंस निकालना है. सो दिस इज द काइंड ऑफ मॉरल व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ दैट व्हाट यू कॉल वैदिक स्क्रिप्चर्स. तो आई जस्ट स्ट्रक मी कि भाई अरे अगर कृष्ण 28 डेज एंड भीम 28 डेज रुक सकता है तो हम तो जिंदगी भर रुक ही सकते हैं. वी रियली आर ह्यूमंस, हमारे पास ऐसे सुपरनेचुरल पावर्स तो है नहीं. Powers नहीं. हमें हमें तो रुकना ही है. फिर एक ना एक दिन वो हमारे लिए सोल्यूशन देगा. जैसे लकड़ी को तोड़ के हम शायद कुछ अचीव कर जाए. तो उस Exactly. तरीके का हमको वेट करना है. सो वी हैव टू बी पेशेंट इनफ टू वेट फॉर हिम टू सपोर्ट यू. ही इज देयर, ही इज एनी विच वे इज देयर, ऐसा. सो ये एक अंडरस्टैंडिंग उस स्टोरी से आती है. So, as we are getting near to our end of this thing interview, Yes. I would like. Would you like to give a message to our parents? Any message to our parents? आई वुड लाइक टू से दैट कि पेरेंट्स का फर्स्ट मतलब हम लोग रोटी कपड़ा मकान तो ऑब्वियसली बच्चों को देना है, बट आई थिंक द फर्स्ट थिंग विच चाइल्ड शुड बी गेटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स इज द मॉरल वैल्यूज. सो उसको आप जितना ज्यादा उनको उसमें निपुण बनाओ या फिर उनको उसमें उनके विचारों को उस तरीके से करो. मॉरल वैल्यूज उनको जिंदगी में कहीं ना कहीं ले ही जाएगा. मतलब
all that is very much एजुकेशन जितना required. इम्पोर्टेंट है उतना ही मॉरल वैल्यूज भी बहुत इम्पोर्टेंट है टू मेक अ होल जैसे हम बोलते हैं ना, एक पूरा wholesome इंसान को एक human being. इंसान बनने के लिए उसे Yes. एजुकेशन के साथ मॉरल वैल्यूज भी होना काफी जरूरी है. काफी So जरूरी to है. make him a successful person, not only by his education or money wise or financially wise, but through his Moral values. education, moral values also work. It happens that कि many times life is not so मतलब smooth road नहीं होता. आज आप देख रहे हो कि कितने बच्चे लोग stress में आते हैं. Exactly. That's right. They get stressed because of not being able to perform in their exams. तो थोड़ा सा parents लोगों ने भी बोलना है, थोड़ा सा थपथपाना, ठीक है हो जाएगा बच्चा, कर लेगा तू. तो वो उस तरीके का अगर सपोर्ट अगर बच्चे को मिल जाता है तो फिर then it is very easy for them to handle the pressure, handle these kind of failures in life. तो मॉरल वैल्यूज आपको सच में उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से. बिकॉज पैसे वो तो कमा ही लेगा, अगर उसके टैलेंट के बेसिस पे पैसे तो आ ही जाएंगे. आप जो भी एजुकेशन भी है आप करवा ही रहे हो, बट what will help him to sustain is the moral values. अगर सपोज कल को कुछ Exactly. उसके When सामने he's exactly. If he faces some kind of a situation, he will automatically remember कि आपने ये चीज बताई थी, and then he will follow that and be there. Like करेक्ट फिर वहां से भागेगा नहीं, मतलब डर नहीं जाएगा. That is very helpful for the children actually. So I think the parents should do. Yes. So now we have come to our end of our interview. So I would like to give you a warm thanks to Gayatri ma'am for being a part of our show. We extremely enjoyed this session and look forward for more sessions from you. It was a pleasure being with you. Hope you also enjoyed us. Yes, absolutely. I enjoyed sharing, and I think we all resonate with that, whatever we spoke just now. I think, yes, that's, I'm very happy to be a part of this actually. Thank you. And you're doing a wonderful job, Purva. You're doing a wonderful job. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.